guys, welcome back to the channel. I hope all of you guys are doing extremely well. I know कि मैं vlog बहुत दिनों के बाद डाल रही हूँ, but I was crazy busy. I can't even tell you how busy I was. आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, बहुत ही स्पेशल इमोशनल डे है मेरे लिए बिकॉज वी जस्ट लेफ्ट स्कायू टू हर स्कूल, लाइक अ प्रॉपर स्कूल, नॉट अ प्ले ग्रुप, लाइक अ प्रॉपर स्कूल इंस्टीट्यूशन को छोड़ के इट वॉज द फर्स्ट डे. इट वॉज द फर्स्ट टाइम सीइंग हर इन स्कूल यूनिफॉर्म एंड आई थिंक I got so emotional because Sky बहुत खुश थी. She made me proud. वो बड़ी खुश थी स्कूल जाने के लिए. She didn't cry. The teacher said she was good. So I was happy about that. But मैं इतनी emotional हो गई कि यार like just 3 years ago she was like a small baby, like chipkowed to me all the times. And अभी वो स्कूल जा रही है. So time really does fly very fast when you have kids. And to see them grow is such a beautiful feeling. But at the same time, how do I express? I think everyone who's a parent and has gone through this phase can completely understand it. You get so emotional seeing small kids grow up, like in a beautiful way. Let me come back to 2025. मुझे लगता है कि 2025 started on such a good note for me. Like मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा motivated, happy, inspired हूँ इस साल, which I'm feeling very good about. So honestly, I made my vision board and I had so many plans and everything, you know, already outlined for me. But वैसा गया नहीं. Like the start just didn't go that way. कभी कभी कैसा होता है, you know the pathway to how to succeed in your career or how to succeed in your work and आपका पूरा plan है, but then when you are a mother there are a lot of sacrifices to make. So I am now a mother of 2 kids and it gets really difficult sometimes to choose between work or between my kids, and I think I will always choose my kids as a priority. Like वो question में भी नहीं आता है, like I'll always choose Sky and Ivana any day over my work. And so I think मेरा बहुत सारा plan था कि मैं ये vlog डालूँगी, वो vlog डालूँगी, ये content shoot करूँगी, वो shoot करूँगी, and I think all of those plans just went down the drain. And those are sacrifices that a woman makes, especially after she becomes a mom. And I just want to say in this vlog, I want to tell you guys कि you know हम लोग सब लोग like Indian society में we give a lot of respect to our moms, and I think all around the world we give so much respect to our moms, which is amazing. After becoming a mother you really understand that, and I feel कि आज के time में, no offense, this is nothing like I'm praising our generation or something like that, but I have to really give it up that the mothers in this generation, I think it's so tough to be a mom because पहले के ज़माने में I think it was very normal that women were housewife and you know they were accustomed to take care of their children, to take care of their home and everything. But आज के ज़माने में महंगाई इतनी ज़्यादा है, plus about the independence, I think all of us women, we are so pushed to work hard in our lives, to go out and work, to make a career, to earn for our family, and also we are expected at the same time कि हम घर का भी ध्यान दें, and we do all the things. So now we are balancing 2 things together, and that is so hard. Trust me, I am in those shoes and I understand how tough it is. And when you have a set career and you have to constantly choose, it hurts, okay? It feels bad because आपको पता है कि आप constantly sacrifice कर रहे हो, and ऐसा नहीं है कि I expect कि निखिल को भी वो sacrifice करना चाहिए, because one of the person has to work hard, because when you have children you have responsibility, you need to earn money. And I'm very lucky कि in content creation field we can choose to be at home and work. We don't have to go out. It's even more tough for women जिनको office जाना पड़ता है अपने बच्चों को maybe day care में छोड़ के, या अपने in-laws के साथ, या अपने family के साथ छोड़ के जाएंगे. It's so tough as a woman, and that's a tough choice you have to make. But all in all, I just want to talk about this topic because it's so less spoken about. Once I became a mother, I realized कि responsibilities इतनी ज़्यादा है कि कभी कभी अपने बारे में सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है. एंड जब मिलता है टाइम, यू रियलाइज़ हाउ मच यू आर सैक्रिफाइसिंग, एंड यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, बट इट काइंड ऑफ हर्ट्स बिकॉज हम बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं पीछे अपनी फैमिली के लिए. सो दैट्स अ सैक्रिफाइस दैट बीइंग अ मदर इन टुडेज टाइम रिक्वायर्स अ लॉट. नॉट दैट बिफोर नहीं लगता था, तभी भी लगता था, तभी तो फुल ही लाइफ डेडिकेट करनी पड़ती थी. बट अभी व्हेन यू हैव टू चूज़ बिटवीन दीज टू कॉन्स्टेंटली, oh my god,
इट इज़ अ बैटल इन इट सेल्फ. बट ऑल्सो कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही है. वाइल मेरे पास मतलब मैं अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रही थी, आई डिसाइडेड कि आई वुड गेट आवर लाइफ अंडर कंट्रोल. आप लोगों को पता है, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, बट हाउस विद द किड्स गॉट क्वाइट मैसी. घर काफ़ी मैसी था. इट वॉज टू क्राउडेड विद अ लॉट ऑफ अनवांटेड थिंग्स. सो पिछले 10 दिन से वी बिन ऑन अ क्लीनिंग स्प्री इन आवर हाउस. लिटरली हमने हर एक रूम को साफ़ किया है, चीज़ें बाहर दे दी है, बेच दी है जो नहीं चाहिए थी. माई ट्रेडमिल्स गॉन एंड अ लॉट ऑफ स्टफ. सो दिस रूम लुक्स क्वाइट क्लीन. इट्स नॉट येट कंप्लीट, थोड़ा काम अभी तक बाकी है, बट वी आर ट्राइंग टू गेट आवर लाइफ बैक ऑन ट्रैक. एंड थैंक गॉड कि आई हैव एन एक्सट्रीमली सपोर्टिव हस्बैंड. आई थिंक दैट टॉपिक इज़ ऑल्सो नॉट स्पोकन अबाउट, बट आई एम वेरी लकी that Nikhil is an extremely supportive husband and he's like, Shandice, you should get help. सारी चीज़ें साथ में नहीं करनी है. Even you have a career and you should really go for it. मेरी कुन्नू अभी उठी है. कुन्नू ने दूध पी लिया. कुन्नू को मजा आ रही है. ये ना मेरे को 70s की लव वाली हीरोइन दिखती है, तो वैसी ही एक्सप्रेशन देती है. सो कमिंग टू द पॉइंट, आई थिंक अ सपोर्टिव हस्बैंड लाइक दैट विल टेल यू कि आपको अपने आप पे भी फोकस करना चाहिए. सो आई थिंक आई डेफिनेटली लक्ड आउट. सो वी आर फाइनली हायरिंग लाइक अ नैनी एंड अ कुक. आई थिंक वो दोनों के आने से बहुत हेल्प हो जाएगी मेरी, बिकॉज आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द फूड एंड आई डोंट हैव टू वरी अबाउट just small activities that Sky needs to do during the day. So that will be really help is appreciated, because अभी मैं अपने मॉम डैड के घर पे नहीं रह रही हूँ गाइज. मैं वापस आ गई हूँ 2nd of Jan से अपने घर पे वापस. So I'm managing everything on my own and it is tough. Sky tak we were well equipped, it was very easy. Ivana is also a very easy child, touch wood. लेकिन you need help. Like वो जो कहना है ना, that it takes a village to raise your kids, that is so true. Like in the olden days, जॉइंट फैमिली में रहते थे या पूरी फैमिली इन्वॉल्व रहती थी बच्चों के साथ, तो सारे बच्चे साथ में पल जाते थे और अच्छा रहता था, यू नो. पर अभी वी लिव इन दिस इंडिपेंडेंट सेटिंग बिकॉज वी वांट आवर फ्रीडम एज वेल. वी वांट टू लिव इन आवर ओन थिंग. आई एम नॉट कंप्लेनिंग, दैट्स अ ब्यूटिफुल थिंग. वो जो फ्रीडम इट फील्स अमेजिंग, बट एट द सेम टाइम यू नीड हेल्प. सो वी आर गेटिंग हेल्प एज वेल. Of course, I'm going to be there always, but मेरे को assistance के लिए कोई ना कोई चाहिए था. So I'm glad that I'm doing this, because I'm not a person who believes in nannies, and my experience the first time around was not nice at all. तो बहुत convincing लगा मुझे mentally अपने आप को करने के लिए, but we finally reached this and I'm excited. बहुत जल्द वो आ जाएंगे तो life will kind of get easier. So I would say, dear mothers, मैंने वो गलती की है, बट आई हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस कि इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प. इट्स ओके टू नीड हेल्प. यू आर नॉट अ बैड मदर इफ़ यू रिक्वायर हेल्प. यू आर नॉट अ बैड मॉम इफ समवन इज हेल्पिंग यू आउट एंड इफ यू टेक अ ब्रेक समटाइम्स. कमिंग टू द पॉइंट कि हाउ सम थिंग्स आर गोइंग अमेजिंगली वेल. तो एट द सेम टाइम स्कायू के टाइम के बाद आई वॉज सो कन्फ्यूज. सब लोग अलग अलग चीज़ें बोलती थी. सो आई वॉज हैविंग पोस्टपार्टम एंगजाइटी, पोस्टपार्टम कन्फ्यूजन. आई यूज टू बी सो स्कैर्ड, क्राइंग बिकॉज स्लीपलेस नाइट्स, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा. करियर में सब बाकी लोग आगे जा रहे हैं, पर आई यूज़ टू फील स्टक. दैट हैपन्स व्हेन यू बिकम अ मदर फॉर द फर्स्ट टाइम. एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई. लाइक आई वाज लाइक, हु इज शैनिस, आई डोंट नो एनी मोर. एंड उस सब के बीच में आई केप्ट ऑन पुटिंग वेट ऑन एंड आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, आई वॉज नेवर हैप्पी. मुझे कॉन्फिडेंट फील नहीं होता था बिल्कुल भी. आई वॉज लूजिंग माई कॉन्फिडेंस धीरे. पर मैं अपने अंदर ही इतनी उलझी हुई थी. आई वॉज सो बिजी बीइंग अ डेडिकेटेड मदर कि आई इग्नोर्ड माई सेल्फ कम्प्लीटली. मुझे निखिल, मेरी मॉम, मेरी बहन ने बहुत सारी बार बोला कि यू शुड टेक टाइम ऑफ, यू शुड ट्राई टू ऑल्सो प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, पर मैंने इग्नोर किया. एंड I think this time around I wanted to get it right. So with Ivana I decided कि चाहे थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़े मुझे टाइम विथ माई किड्स, पर मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करूँगी इन 2025. एंड सो आई एम सो ग्लैड कि फाइनली 1 महीने से मैं रोज़ वर्कआउट करी हूँ गाइज, रोज़. आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज दिस इज़ सच अ बिग थिंग फॉर मी. इट्स नॉट ईजी. आप बोलोगे क्या बड़ी बात है, सब वर्कआउट करते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, बट इट इज़ फॉर मी. मे बी सम थिंग्स आर नॉट बिग फॉर यू गाइज, मे नॉट बी बिग फॉर एवरी वन, बट फॉर मी बीइंग डेडिकेटेड to a certain lifestyle, to a diet, to a routine, to actually find time to work out every day for like 90 minutes is a big deal, and I'm proud of myself. And मुझे पता है कि by the end of the year or mid-year you guys will see a transformation for sure. That's coming and I can tell you that. So if anybody, any mom watching me out here, you are second guessing कि मुझे करना चाहिए अपने आप को प्रायोरिटाइज़ कि नहीं, या मैं एक बुरी माँ बन जाऊँगी, आई एम हियर टू टेल यू दैट इट्स ओके, बिकॉज आई ऑनेस्टली बिलीव दैट अ हैप्पी मदर, हेल्दी मदर इज़ अ बेटर मदर. अगर आप अपने अंदर ही उलझे हुए और सैड हो, यू विल स्टिल बी अ गुड मदर, बट आई थिंक
you will not be able to give your 100% because you are hurting somewhere. So as a fellow mom, I will say ki it's okay, do it for yourself in 2025. Take that time off, ask for help, go out with your friends, do that workout, do whatever that makes you happy, but do it. This vlog is kind of different. I'm like doing a heart to heart talk and it might seem like counseling to some people, but I just wanted to do this and I hope, please मुझे बताना कि आप लोग को ये ऐसे टॉपिक्स पे जब मैं बात करती हूँ कैसा लगता है. It motivates me to make more videos like these. and आप लोग से बात करते करते अभी स्कायू को पिकअप करने का टाइम हो गया. 2.5 hours निकल गए because I was working around the house, so I need to go and pick her up and then we'll continue this part. Notice something weird over there. And that's it. Yes. So if that is also doable, then try to take your head close to your knees. What's her name? Ivana. Ivana. Very nice name. Ivana, say thank you. I made my mama fat. Please, you make her thin. She's busy looking at the camera. Her face is little like you. Yeah. She looks a lot like Nikhil, but now she started looking like me. ठीक है, थैंक यू. यस आई विल. कल योगा का शाम को ही रखते हैं. शाम को? ओके, अच्छा ठीक है. This is how I finished my workout. मेरा schedule बहुत busy है. Normally I do online training with my trainer in the gym, लेकिन आज मैंने online training घर पे की है. So basically मेरा trainer जो है मुझे online train करता है. He comes on the phone, I put the video calling on and फिर हम साथ में train करते हैं. I find that really convenient कि मैं कहीं पे भी travel कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, मैं फिर भी उनके साथ train कर सकती हूँ because I train online and I can train at home with minimal things. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. बस my trainer doesn't have to meet me physically every time. Even if I am traveling या मैं चाहे कहीं पे भी हूँ, मैं वहाँ से अपने ट्रेनर के साथ ट्रेन कर सकती हूँ. दैट्स वाई आई रियली लव माई एंटायर रूटीन, न्यूट्रिशन प्लान, एवरीथिंग विद आस्क नेचुरल. गाइज इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इफ़ यू गाइज वांट टू इंक्वायर अबाउट देम, बिकॉज मुझे इतने सारे क्वेश्चन आते हैं दैट प्लीज़ शेयर योर रूटीन, प्लीज़ शेयर द डाइट यू आर ऑन और शेयर योर न्यूट्रिशन एंड वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं. बट आई फील लाइक मैं ही इस चीज़ में इतनी नई हूँ और मुझे इतना इन्फॉर्मेशन I don't know so much about how to lose weight when you put on so much weight and after childbirth or just in general. मुझे इतना information नहीं है. So that's why I'm training with people who are professional and I think उन लोग से direct contact करना would be a better way for you guys to know, because मैं कुछ अपने side से बता दूँगी और फिर आपके साथ कुछ गलत हुआ then you will blame me. So I will just put their link down. You can inquire with them and see what plan works for you. But if you're in any city, any country or anywhere, they train you 45 days training with them. एंड मुझे इतनी सारी चेंजेस अपनी एनर्जी में, अपने मेंटल एनर्जी में, फिजिकल एनर्जी में, मुझे फिजिकल चेंजेस भी दिख रहे हैं इंचेस वाइज. सो आई एम सो हैप्पी विद देम एंड आई रियली रिकमेंड देम. लाइक आई कैन से आई एम सो हैप्पी. स्काई विल कम एंड शी विल ट्रबल यू अगेन. ईबू का मैंने साइड में रख के मस्त ट्रेन करी थी. बट आई एम सो ग्लैड इट्स जस्ट 12:30 एंड आई एम डन विथ माई वर्कआउट इज़ वेल. तो आज पूरे दिन में अपना काम वाम सब कर सकती हूँ. तो दैट्स वाई आई लव टू वर्कआउट इन द मॉर्निंग एंड कल मेरा योगा है, सो इट विल बी फन टू. फेलो मॉम, हम लोग को दूसरी मॉम से इंस्पिरेशन लेना चाहिए. लाइक फॉर मी, I was very inexperienced as a mother and I didn't know how life goes about, कैसे manage करना है. But around me I had an amazing mother that I looked up to. My friend Sumera, like Rizwan is Nikhil's best friend, and उसकी बीवी, I think she's a very good inspiration for me as a mom and I don't feel shy or bad about it कि I'm taking inspiration from other mother. But उससे मैंने सीखा that what it is, how it feels to prioritize yourself as a mother and then you can invest more time mentally into your kids' future, because I have seen her that वो अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस भी देती है, वर्कआउट करती है, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती है, वर्क्स एवरीथिंग, शी डज एवरीथिंग फॉर हर सेल्फ एंड देन शी इज़ एन अमेजिंग मदर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स इन हर किड्स. तो don't feel shy to take inspiration from any mother around you and to learn that how she is managing her life, because मैंने एक quote पढ़ा था उस दिन Instagram पे that when you are a grown up and a mother, the best thing for you to find like a best friend is कि आप कोई भी ऐसी मॉम को ढूंढो जो इसका एक सिमिलर लाइफस्टाइल है आपके जैसा, या जो आप अपने बच्चों को चाहते हो, आप वो वैसी ज़िंदगी जी रही है, and then you can just come together and you will become the best of friends for the entire life and you can raise your kids together, you can talk about similar issues.
similar problems, what you're going through, and life becomes better. It's like having a counselor for life in a best friend. तो मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा. So I'm hoping कि स्कायू के स्कूल में या कहीं पे तो I'll find a friend like this. I'm hoping. So this is me 3 hours later. स्कायू का स्कूल टाइम was amazing. Like टीचर ने बोला कि शी हैड लॉट्स ऑफ फन. जब हम गए भी थे तो वो एक्चुअली खेल रही थी. एंड आज फर्स्ट डे पे लोग बोलते हैं कि 1 घंटे को बिठाने के लिए, बट देन शी वॉज नॉट क्रैंकी एट ऑल. तो टीचर ने उसको फुल टाइम के लिए बिठा दिया स्कूल में. शी रियली इन्जॉयड. सो आई थिंक कि अब से वो रोज़ लुक फॉरवर्ड करेगी स्कूल जाने के लिए. सो दैट इज़ सॉर्टेड. बट उसके बाद में वी हैड टू गो डू अ चेकअप फॉर रूटीन चेकअप फॉर ईवू. एंड वी हैड टू गो डू अ ब्लड टेस्ट फॉर स्काई बिकॉज स्कूल वालों को ब्लड ग्रुप चाहिए ID कार्ड पे डालने के लिए. एंड देन कैनेडा वेन एवर वी डू एनी चेक्स और एनीथिंग, दे डोंट चेक द ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन until really necessary. तो हम लोग को पता नहीं था. आई नो इट्स वियर्ड, हमारे यहाँ पे पहले ही बता देते, बट कनाडा में ऐसा नहीं है. सो वी डिडंट नो हर ब्लड ग्रुप एंड वी हैड टू फाइंड इट टुडे बिकॉज स्कूल पीपल वांटेड टू पुट ऑन द ID कार्ड. तो वो जो टेस्ट करने के लिए स्कायू ने जो रोई है, इतना परेशान हो गए हम बिकॉज लिटरली आई हैड टू होल्ड ईवू. निखिल वॉज होल्डिंग स्कायू while doing the test and then स्कायू got out of hand. She was screaming and crying. आई थिंक पूरे हॉस्पिटल वाले परेशान हो गए होंगे, वो इतना रो रही थी. दैट वाज सो स्ट्रेसफुल. बट कैसे ना कैसे करके हो गया. प्लस वहाँ पे जब हम टेस्ट करें तो निकल गॉट अ रियली बैड क्रैम्प इन स्टमक. वो भी हेल्प नहीं कर पाया था 5-10 मिनट्स. तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया. बट आई एम बैक. Hectic life of mothers. I hope you guys understood what I said because that's how stressed I am. I'm literally blabbering. Prep for myself. मैंने एक अच्छी रेसिपी देखी जो मेरी फ्रेंड जिनेल ने मुझे भेजा है बिकॉज आई ईट लाइक हाई प्रोटीन डाइट्स नाउअडेज. तो मैं अपने लिए अंडे बॉयल किए हैं एंड मैं अपने लिए कुछ बनाने वाली हूँ. आफ्टर दैट आई कुक फूड फॉर ईवू एंड स्कायू. ईवू क्या, फॉर स्कायू एंड निखिल. ईवू तो अभी तक खाती नहीं है, उसके लिए 1.5-2 months बाकी है. सो आई एम गोना डू दैट. सो या इट्स बिन pretty हेक्टिक. उसके बीच में माई मेड केम होम, शी क्लीन्ड द हाउस, शी आयर्न द क्लोथ्स. तो वो सब भी हुआ. सो या इफ़ यू आस्क लाइक अ स्केड्यूल ऑफ वॉट ऑल you do when you sit at home, there's so much. So my eggs are ready. These smell delicious and look so yummy. अभी जाके खाती हूँ और मुझे पता है निखिल का लंच हो गया है करके. बट जैसे ही वो मेरा अंडा दिखेगा बोलेगा I need to eat it too. Look at my dish, what I made. अरे वाह, ये क्या किया अंडे का? High protein diet. 2 hours for you. You can eat and try and अरे eat. वाह, वो कॉफी स्टेशन है. It's hot. अभी तू उंगली देगी तो हाथ पकड़ूंगा ना. डिमांड खत्म भी नहीं होता है, संभल के. Is it nice or not? Tell real. Nice, very It's a nice. new recipe I tried. इतनी थकी हुई थी फिर भी सोने के लिए इतना ड्रामा. कैसे ना कैसे करके I put her to sleep and now I'm eating my lunch. Late. Mom always eats late. Her lunch and now Maharani Sahib is eating a lunch. मुझे लगा नहीं था कि कभी स्कायू ऑल्सो विल बी अ दाल राइस पर्सन, बट शी इज़ जस्ट लाइक मी एंड निखिल, फुल ऑन दाल राइस पर्सन. एंड दूसरी वाली को भी दाल राइस खाने के लिए उतावली हो रही है वो. देख रही क्या, किससे बात कर रही मम्मी? बट पेरेंटहुड, motherhood, full 24/7 job, and especially also fatherhood when you have a committed father, when you want to be a committed father. So today Ivana and Skylar's, both the Masis are here entertaining cutely. And Ivana को तो dolls बहुत पसंद है. She thinks they are real. La 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 See, you la dancing. la again la 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 la. ये निकल इसको क्या है? निखिल को मानना पड़ेगा. He can do this from day to night with his kids. चलो jump. Who would have thought Nikhil can make such an amazing father? ये हमारे घर में रोज का गेम है, भाग दौड़ वाला. Oh no, Kishu. Ole, Ibu likes it. तो थोड़े टाइम के लिए आई वॉज होम अलोन विद ईवो
एंड निखिल स्कायू को पहली बार टाउन लेके गया, लेकिन मुंबई अकेले लेके गया फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. दे हैड रियली फन. I was just doing all the work in the house and Nikhil wanted to give me a break. And ये जो इबू है, इसको इतना अच्छा लगता है मस्ती करने के लिए. अरे अरे काट मत बेटा. निखिल वो डर गई. अरे अरे ओके ओके आई नो योर पोजीशन. ये रोज का हमारे घर में ये चलता है भाई. We are a loud, messy but a happy family. And Nikhil is a crazy, crazy daddy. किसु किसु. Oh no. Oh no. हाथ वाला क्या. Sky dance, dancing. Na 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 like it. Na na. Best daddy.